Okay, class 7th, Jai Hind. This chapter was finished in the last class. We discussed about all the dams and the major multi-purpose project also. And in the last class, big dams versus small dams. We have also seen this picture. So today, let me focus you on this exercise part. What you have to do is you have to search out the answers. You can go through the videos again and again, and then you have to answer these questions. Okay, these 3 questions which are written here, clear? Then tick the correct option. You can pause it and try to search out the answers through the last classes. You can go to the videos, or you can search on the internet also, but you have to find the answers. If you don't find any answer, you can just message me in the WhatsApp group of your class. So you can see here 4 fill in the blanks are also given. Understood? Then tick the correct statements are also given, and after that 4 questions are given. So basically you have to try to find out the answers. If you don't find it, you have to message me. Understood? All right, now you can move on to the next lesson, chapter 2nd, internal structure of earth. As the name suggests, अर्थ के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर you have to study in this particular chapter. Now structure means what? Structure means formation. कैसे अर्थ हमारा फॉर्म हुआ है. अगर अर्थ की बात करें तो अंदर से अर्थ कैसी है, इसका फॉर्मेशन किन मटेरियल से हुआ है, किस टाइप की चीज़ों से हुआ है, इसमें कितनी लेयर्स हैं, वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. The shape and size of the earth. If you see the earth, it is slightly bulging at the equator and flattened at the poles. So the polar diameter is about 43 kilometers shorter than the equatorial diameter. For all practical purposes, we assume that the earth to be a sphere, but technically it is a spheroid. Do you understand what is given in this paragraph? See, if you have a ball, that ball, of course not the rugby ball or other ball, sphere ball जो कि फुटबॉल होती है, if we take example of football or cricket ball or tennis ball, so जो बिल्कुल गोल बॉल होती है, that is known as a sphere, but earth is not spherical. Okay, earth जो होती है वो, suppose this is earth, so इसका जो टॉप यानी कि नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, यहाँ से थोड़ी सी सिकुड़ी हुई है. अंडरस्टूड? एंड इट इज़ ब्रॉडर फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट साइड्स. अंडरस्टूड? यानी कि पोल्स से ये थोड़ी सी दबी हुई है, और जब हम सेंटर इक्वेटर की बात करते हैं तो वहाँ से थोड़ी सी फैली हुई है. एंड दैट्स वाई इट्स रियल शेप इज टेक्निकली स्फेरॉइड. अंडरस्टूड? So around 230 BC, Eratosthenes, a Greek Philosthenes, a Greek philosopher living in Egypt, जो इजिप्ट में रहते थे, try to find out the size of the earth. उन्होंने कोशिश की कि हम साइज पता लगाएं अर्थ की. So his calculation very close to the actual measurement of today. उस समय पर यानी कि 230 BC में उन्होंने कोशिश की थी. तो आज की जो रियल मेजरमेंट्स है उसके काफ़ी पास तक, यानी काफ़ी सटीक उन्होंने कैलकुलेशन कर भी ली थी. विच इज़ अबाउट विच वॉज कैलकुलेटेड बाय हिम वॉज 40,000 किलोमीटर इज़ द सर्कमफ्रेंस. अगर हम पूरा राउंड लगाएंगे पृथ्वी का तो वो 40,000 किलोमीटर के लगभग होगा, जो कि इक्वेटोरियल यानी कि यहाँ पर अगर एक बॉल रखी तो वो इस टाइप से जब हम घूमेंगे तो कितना होगा, 40,000 किलोमीटर. बट वाइल द एक्चुअल इक्वेटोरियल, लेकिन अगर हम आज की बात करें जो कि हम मॉडर्न मशीनरी से हमने एक्चुअल फाइंड आउट किया, तो वो लगभग 40,075 किलोमीटर यानी 40,075 किलोमीटर, यानी सिर्फ 75 किलोमीटर का फ़र्क था. उन्होंने 40,000 बताया था, आज 40,075 किलोमीटर है. नाउ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कैसा अर्थ का इंटीरियर है. सो नंबर 1 इज क्रस्ट.
द शेप ऑफ द अर्थ इज़ जस्ट लाइक एन ओनियन. यस, ओनियन से आप समझ सकते हैं, अगर सीधा ओनियन आप ऐसे पकड़ेंगे तो ऊपर से यानी कि दोनों साइड से थोड़ा सा दबा हुआ है एंड इस साइड से थोड़ा सा फैला हुआ है. So by analyzing the seismogram recorded from many earthquake, scientists have discovered that three main layers of the shells exist within the layer. अगर हम अर्थक्वेक्स की बात करें या सिस्मोग्राम की बात करें तो उससे हमने पता लगाया कि 3 मेन लेयर है अर्थ के अंदर. Newton was the first scientist to theorize about the structure of the earth. Since then many scientists presented theories on the structure of the earth. So सबसे पहले व्यक्ति थे न्यूटन जिन्होंने इसके बारे में बताया, यानी कि जो स्ट्रक्चर अर्थ का है इसके बारे में बताया. उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थियरीज प्रेजेंट की. सो द पार्ट ऑफ द अर्थ वी लीव, जहाँ पर हम रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पतला है. एंड अगर हम इनर अर्थ की बात करें तो उसके कंपैरिजन में बाहर वाला पार्ट जहाँ पर हम रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पतला है, थिन पार्ट है. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइड इंटू 3 मेजर लेयर्स. अगर हम इंटीरियर की बात करें तो 3 मेजर लेयर्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं. कौन से 3 लेयर? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ये 3 लेयर्स हैं जिसके अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. सो नंबर 1 इज़ क्रस्ट. सबसे बाहर की अगर हम बात करें, सबसे बाहर जो हम देखते हैं हमारी नेकेड आई से, वो अपर मोस्ट लेयर है एंड उसी को बोला जाता है क्रस्ट, सबसे बाहर वाला लेयर. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन लेयर कॉल्ड सियाल. ओके, सबसे बाहर या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम बात करें तो उस लेयर को बोला जाता है सियाल. नाउ दिस सियाल वर्ड केम फ्रॉम सिलिका एंड एल्यूमिनियम. SI फॉर सिलिका, AL फॉर एल्यूमिनियम. क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिलिका एंड एल्यूमिनियम पाया जाता है क्रस्ट में, दैट्स वाई दिस इज नॉन एज सियाल. सो द ओशनिक क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ बेसाल्टिक लेयर कॉल्ड सीमा. अगर ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, यानी कि ओशियन के पानी के नीचे जो क्रस्ट है वो भी टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, तो उसको बोला जाता है सीमा, क्योंकि वहाँ पर सिलिका एंड मैग्नीशियम ज़्यादा होता है. अंडरस्टूड. कॉन्टिनेंटल मतलब कि जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम रहते हैं उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा है, लेकिन पानी के नीचे समुद्र में जो लेयर है वो भी टॉप मोस्ट लेयर है, तो वो भी है तो क्रस्ट. उस लेयर को बोला जाता है सीमा, क्योंकि सिलिका एंड मैग्नीशियम की अधिकता उसके अंदर पाई जाती है, मिनरल्स उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं. क्रस्ट इज द थिकर ऑन द कॉन्टिनेंट. डेफिनेटली क्रस्ट जो है वो बहुत मोटा रहेगा जब हम कॉन्टिनेंट यानी कि हम लैंड की बात करते हैं, और बहुत पतला रहेगा जब हम ओशन के नीचे फ्लोर में पानी के नीचे चले जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वो काफ़ी गहरा होता है. सो द सियाल लेयर इज़ फ्लोटिंग ऑन द सीमा लेयर. तो सियाल लेयर यानी कि ऊपर की जो लेयर है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करती है. द एवरेज डेप्थ ऑफ सियाल की जो एवरेज डेप्थ है वो 20 किलोमीटर के लगभग है, एंड सीमा की जो डेप्थ है वो लगभग 25 किलोमीटर है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट वॉज क्रस्ट. नाउ सेकेंड इज मेंटल. सो मेंटल लाइज बिटवीन क्रस्ट एंड कोर. अब थर्ड पार्ट जो आएगा वो क्या आएगा? कोर. सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या था? क्रस्ट. तो उनके बीच में जो है वो है मेंटल, एंड इट कंप्राइजेज 83% ऑफ अर्थ वॉल्यूम. अर्थ के वॉल्यूम की हम बात करें तो 83% लगभग मेंटल से ही बना हुआ है. सबसे मोटा पार्ट जो है वो मेंटल का है. सो इट इज़ मेड अप ऑफ प्लेट्स दैट मूव एंड क्रिएट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बियॉन्ड 900 किलोमीटर. दिस लेयर इज कम्प्लीटली होमोजीनियस. अपर मेंटल इज नोन एज asthenosphere. It extends up to a depth of 700 kilometer. Lower mantle is semi-solid and it is plastic in nature. The average density is about 8 gram per centimeter. तो इसके अंदर अलग अलग प्लेट्स हैं, एंड इफ़ यू सी मेंटल, तो मेंटल ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये एक ऐसी बीच में लेयर है जो खिसकती रहती है, तो जिसके कारण अलग अलग कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए. पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे, अभी कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए, एंड 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर बेसिकली टुडे. अंडरस्टूड. एंड इसकी भी 2 लेयर है, जो एक है वो 900 किलोमीटर्स तक है, एक जो लेयर है वो 700 किलोमीटर्स तक है. तो ऊपर वाला जो है लगभग सॉलिड है, लेकिन हम थोड़ा सा जब अंदर जाते हैं मेंटल में तो वो सेमी सॉलिड हो जाता है या प्लास्टिक इन नेचर हो जाता है. एंड द वेरी इनर यानी कि पृथ्वी के सबसे अंदर की जो लेयर है दैट इज नोन एज कोर. ओके, इनर मोस्ट लेयर इज कोर एंड इट इज नोन एज नाइफ. नाउ डेफिनेटली नाइफ भी नाम पड़ा है तो मिनरल्स के ऊपर ही पड़ा होगा. Ni for nickel,
Fe4 फेरस, फेरस मीन्स आयरन, आयरन का जो आयरन को हम कैसे लिखते हैं, इन हायर क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड, आयरन मीन्स Fe, so it is known as knife. Okay, so this layer produces Earth's magnetic field. अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी से फॉर्म होती है ना. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेट के आसपास जो फील्ड प्रोड्यूस होती है जिससे कि लोहा उससे अट्रैक्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो इसके कारण ही प्रोड्यूस होती है. इसके दो डिवीजन है, आउटर कोर, इनर कोर, यानी कि बाहर वाला कोर और एक अंदर वाला कोर. एंड द पार्टिकल्स प्रेजेंट हियर रिसेंबल लाइक लिक्विड. इसके अंदर जो पार्टिकल्स हो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होते हैं. इट मे बी सॉलिड इन स्टेट ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग लेयर्स. तो वो सॉलिड जैसे एक्ट कर सकते हैं क्योंकि आसपास से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इस प्रेशर के कारण वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, एक ही जगह पर वो लिक्विड रहता है, इसलिए वो सॉलिड टाइप दिखता है. अंडरस्टूड? सो दिस 3 लेयर, क्रस्ट, मेंटल, कोर. In next class we are going to understand about rocks and minerals. Thank you.